Good afternoon, students. Welcome to YouTube channel of GC Bardmer. Today, I am starting a new subject of civil engineering students and as well as mechanical students, which is strength of material, SOM, and also his name is mechanics of material, MOM. As per B2 syllabus, uh, it, as per B2 syllabus, it is a 3 credits subject, which is maximum marks is 150. ओके देन ये जो सब्जेक्ट आपका रहेगा उसमें इंटरनल जो असेसमेंट रहेगा आपका आईए मींस मिड टर्म जो आपके 1 और 2 टोटल सम अप रहेगा 30 मार्क्स का एंड एंड टर्म जो एग्जामिनेशन रहेगा वो रहेगा आपका 120 मार्क्स का ओके देन नॉर्मली जो ये जो सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक फाउंडेशन है मींस आपका अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जाएंगे आप डिजाइन सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको बेसिक जो है मींस आपके जो इंजीनियरिंग की जो फाउंडेशन है सिविल और मैकेनिकल की वो ये सब्जेक्ट बहुत डिफाइन करता है कि सोम में आपकी पकड़ कितनी है। तो स्टार्टिंग से अपन आज के लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एकदम सिंपल। नॉर्मली जैसे यूनिट से रहेगी अपनी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन रहेगा कि अपन ये जो सब्जेक्ट जो है वो किस तरह डील करेंगे, क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या इसका आउटकम्स रहेगा, स्कोप क्या है और इंटरकनेक्टेड विथ योर हायर सब्जेक्ट। हायर सब्जेक्ट मींस when you enter in third year then you will get a subject is steel design, RCC and structural analysis। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन। नॉर्मली इंट्रोडक्शन में इस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा ये भी देखेंगे, स्कोप और आउटकम। सेकंड जो यूनिट है वो बिल्कुल है आपकी किसमें, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन डिफरेंट मेंबर्स। तो नॉर्मली सिंपल स्ट्रेसेस हो जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, बहुत सारी स्ट्रेसेस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पे लगती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन अब जो मटेरियल का क्रॉस सेक्शन है वो भी रहेगा कि अगर मटेरियल का क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी लेंथ इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक सेक्शन एंड अगर वेरी करता है थ्रू आउट दी लेंथ तो उसको बोलेंगे नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। ओके देन इसी सब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जनरेट आइदर दी थर्मल स्ट्रेसेस और in the thermal stresses we can deal about the temperature gradient increase or decrease, the strain dealing. Then stresses in the composite material. Composite means the more than two materials are combined, then we construct a single object. Okay, then very famous equation is compatibility conditions in the SOM. ओके देन थर्ड यूनिट आपकी रहेगी कंपाउंड स्ट्रेस। इन दी कंपाउंड स्ट्रेस वी विल डील दी अबाउट दी 2 to 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस ऑन ए ऑब्जेक्ट। अभी के लिए मैं जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने ये सब्जेक्ट का। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड वी आल्सो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल which is elasticity, plastic, toughness. In the third unit, in the compound stress, there are the two-dimensional stress system, and by the help of the two-dimensional stress system, we can find out the stress resultant. In your 12th physics subject, you very well know about the resultant of the two forces, which is if two forces are perpendicular, then you can directly say the resultant is a square root of the two forces, F1 square and F2 square. Okay, then in the third unit we can also know the resultant, then final the principal planes and corresponding to principal stresses and state of the pure shear, maximum shear stress and
the final graphical representation of the two-dimensional stress system, which is called Mohr circle. And by the help of the Mohr circle, you can resolve, you can find out the stress resultant, you can find out the principal stress, you can find also the principal plane. Then finally, there will be theories develop on the failure of material. Different types of theories, which is a maximum stress theory, distortion theory, and principal stress theory, Rankine theory. Then in the fourth number unit is the bending of the beam. Very famous topics of this. So as compared for civil engineering students, also mechanical students. We very well know about the bending. Bending means a member, straight member, which is subjected to force or moment, and it deform like this. If you subjected a member by the help of moments or forces. Simple. If you have a scale of your geometry, which is 15 centimeter scale, if you put scale in between your thumb and finger, then turn to curvature on this scale. Okay. Then how can? Then after scale is just like deform like this. It's called the bending. Then in the bending, we can also find out the bending moment, BM, then shear force, SF, and axial thrust. All corresponding to also draw the diagram, which is called the bending moment diagram, BMD, and SFD, shear force diagram. Then finally, the resultant find out the maximum load, maximum shear force, maximum axial thrust, and maximum bending moment. Also find out the point of contraflexure, which means where the moment tends to 0. And also relation between the force, which is denote F, and shear force, SF, and bending moment, mutual relation between three quantities. Then final, we have another unit's fifth, theory of simple bending. Theory of simple bending, we find out the a flexure formula, which is F upon Y and M upon I and E upon R. ये फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये फॉर्मूला अपन इस थ्योरी में बिल्कुल ड्राइव करेंगे और फाइनल इस फॉर्मेट में रखेंगे. By the help of this formula, we can find out many things, as we can find out the stress at a point, we can find out the moment, and we can also find out the between relation where the moment tends to 0, or we can also find out the resisting moment of a beam due to force or moment. Then 6th unit another, which is a torsion. वन बाय वन जो वर्ड्स जो हैं वो जस्ट आज की क्लास में जस्ट अपन रिमेम्बर करेंगे. बाकी एज वे जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होगी आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि टॉर्जन का मीनिंग्स क्या होता है, कंपाउंड स्ट्रेस कब जनरेटेड होती है, सिंपल स्ट्रेसेस कब जनरेट होती है. तो एज यूजुअल अपन इसको आगे बढ़ते रहेंगे. देन टॉर्जन में क्या है भाई? टॉर्जन में सिंपली इसका कंसेप्ट एंड शियर स्ट्रेस इन प्लेन लगेगी इसके अंदर. Two types of the section discussed. First is the solid and second is hollow. Then also we can find out the torsional formula as similar to bending. Then it is a topic mostly importance in the mechanical engineering students in the mechanical machines where the torsional is a predominant in the shaft. Shaft means a cylindrical member which has cross section area uniform to throughout the length. Then 7 topics, 7 number units में क्या रहेगा आपका? Column, which is mostly related to civil engineering students. Different types of column. First is the short and long. Then how to define the slenderness ratio.
and the failure of the column either in the crushing, and second is buckling. Also in this topic we can very famous theory about the Euler theory and its limitation, and we can also two formula derives. First is Rankine and second is a secant formula for the finding the effective finding the critical load या फिर collapse load of a eccentric column. Then final very important in civil engineering as per mechanical engineering students, which is a deflection of beam. Deflection of beams में क्या रहेगा कि normally due to just example मैंने बताया था कि अगर आप एक स्केल लेते हैं, आपकी जो ड्राइंग्स स्केल है which is 15 सेंटीमीटर either the 30 सेंटीमीटर, और इस स्केल को अगर आप पुट इन दी फिंगर्स के बीच में रहो और ये जो पॉइंट्स है इसको इस तरह बेंड करोगे तो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे. इसी स्ट्रेसेस जनरेट होने के ड्यू टू स्ट्रेसेस जनरेट होने की वजह से जो बॉडी है आपकी या ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, डिफॉर्म. डिफॉर्म मींस ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या शो कर रही है, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप, मींस मिडल पॉइंट जो है वो हाईएस्ट डिफ्लेक्ट होगा. तो इसमें we can also find out the slope का means कि ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो अगर टेंजेंट ड्रॉ करो जिस पोर्शन पे जा रहा है वो है एंगल थीटा which is called slope, and midpoint या any point from the 2 points distant vertical which is called deflection. In this unit very famous theory and method, double integration method, very simple method, and advanced method, Macaulay method, and second area moment method and conjugate beam method. Conjugate beam method, ये जो चारों मेथड है इससे अपन एक ही प्रॉब्लम को चारों मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, और फाइनली ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है अभी के लिए आपके सिर्फ स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रिज्मेटिक बीम्स के लिए ही आपको पढ़ना है. इन हायर और थर्ड ईयर इन द थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फेमस सब्जेक्ट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस, essay 1 and essay 2. We can where find out the deflection of beam in a indeterminate structure, indeterminate beams, prismatic either non prismatic. Okay, then अब आगे बढ़ते हैं अपन सिंपल कि इसके लिए आपको क्या क्या, एक तो बुक्स का रेफरेंस और स्टैंडर्ड जो बुक्स रहेगी वो टेक्स्ट बुक कौन सी रहेगी और इजीली कौन सी अवेलेबल हो जाएगी, और जहां तक अपनी इसमें क्लास में मैं मोस्टली कवर कर लूंगा, बट इंटरेस्टेड जो लोग हैं जो बुक्स स्टडी करना चाहते हैं वो भी इसको ले सकता है, और नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा थ्रू दी क्लासरूम. एंड इसी सब्जेक्ट का आपका अनदर फॉर्म है वो है प्रैक्टिकल लैब. ये जो प्रैक्टिकल लैब है वो क्या नाम है, मटेरियल टेस्टिंग लैब. वेरी इंपॉर्टेंट लैब फॉर दी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. फर्स्ट फेमस टेस्ट रहेगा आपका टेस्ट ऑन दी माइल्ड स्टील एंड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, जो कि आपने वेरी वेल नोट देखा होगा कि जो कंक्रीट जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट जो कंस्ट्रक्ट होती है तो उसमें बार्स जनरेट होती है, उसको बोलते हैं अपनी हिंदी में सरिया. रेनफोर्समेंट बार इसको बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार. इन दोनों स्टील के लिए अपन को फाइंड करना है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व जनरेट करेंगे और कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, आइदर द यील्ड स्ट्रेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी. अब सेकंड टेस्ट रहेगा आपका मटेरियल्स रहे हैं सीमेंट एंड कंक्रीट क्यूब्स की आपको डिफाइन करनी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ओके, थर्ड वन इज टेस्ट फॉर कंडक्टेड हार्डनेस टेस्ट. ये सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है कि डिफरेंट टाइप, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इलास्टिसिटी कितनी है, प्लास्टिसिटी कितनी है, टफनेस कितनी है, इम्पैक्टनेस कितनी है, और ये मटेरियल उसी करस्पॉन्डिंग आपका यूज आता है. जैसे
कि अगर मैं आपको बोलूं जस्ट कि आप रेजिडेंशियल हाउस में आप मार्बल्स या टाइल्स लगाते हैं, तो उसमें एक सडन अगर ऑब्जेक्ट को आप हैवी मटेरियल को फ्री फॉल कराते हैं, तो वो ड्यू टू इम्पैक्ट आपकी वो टाइल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है ना। तो वो भी उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है कि ड्यू टू इम्पैक्ट मटेरियल जो है वो ब्रिटल मटेरियल होने की वजह से सडन ब्रेक डाउन होता है। और दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, तो आपकी इलेक्ट्रिक वायर हो गई, या फिर गोल्ड या सिल्वर की जो स्मॉल वायरिंग जो होती है, उसको अगर आप स्ट्रेंथन देते हो, मतलब स्ट्रेंथन सॉरी, अगर उसको टेंसाइल अगर आपके दो फिंगर्स के बीच में या स्क्रू के बीच में अगर आपको उसको पुल करते हो, तो वो कंटिन्यूसली इलोंगेटेड होती है। तो वो भी उस मटेरियल की क्या है प्रॉपर्टीज, कि उस मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी ज्यादा है, तो वो इजिली क्या हो सकती है वायर फॉर्म में, या फिर इजिली इलोंगेटेड हो सकती है। ओके, फोर्थ नंबर है आपका इम्पैक्ट टेस्ट, और फिफ्थ नंबर मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ वुडन बीम्स। की ओल्ड डेज में क्या था कि मटेरियल जो स्टील जो है वो इजिली अवेलेबल नहीं था, और टिम्बर जो है वो इजिली अवेलेबल था। तो मोस्टली वहां पे हिली एरियाज में क्या कंस्ट्रक्ट करते थे, वुडन की बीम्स। तो इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका मॉडुलस ऑफ रप्चर मींस ईआई की वैल्यू कितनी है। मॉडुलस ऑफ रप्चर मींस कि ईआई जो आपका है फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ईआई, और किस मोमेंट के लिए ये ब्रेकडाउन या फिर फेलियर हो रहा है। देन वेरी फेमस टेस्ट इज फटीग टेस्ट। फटीग टेस्ट का मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, कि आपने बचपन में अगर किसी सिंगल वायर को अगर ब्रेक डाउन करना है आपको, मतलब उस वायर को कट करना है विदाउट यूजिंग एनी टूल्स, तो आप क्या करते थे, सिंपल एक वायर को लिया और आप क्या कर रहे हो, उस वायर को अप डाउन मींस जो मूवमेंट है वो हैंड की वो रिवर्स एक्शन में करते हैं। कैसे कि अगर मेरे को सिंगल वायर है, ये इसको ब्रेक डाउन करना है, मींस यहां से कट करना है विदाउट यूजिंग टूल, आप टूल यूज नहीं करना है। अगर आप इसको इलोंगेट अगर आप पुल करोगे तो ये क्या होगी, इलोंगेट, क्योंकि डक्टिलिटी है। देन अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट तो फिंगर्स आपकी जो हैंड, दोनों हैंड से क्या करोगे आप, इसकी मूवमेंट इस टाइप से। तो पहली मूवमेंट तो यहाँ पे होगी, और थंब को यहाँ पे रखा, तो फर्स्ट टाइम तो ये मूवमेंट होगी। सेकंड मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए अपोजिट एंड पे। अपोजिट एंड पे होने पे इस मेटेरियल में इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या होता है, रिवर्सिबल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ये जो रिवर्सिबल स्ट्रेसेस जनरेट होता है, और इसी के वजह से एक सर्टेन लिमिट आती है और वहां पे मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है। ये भी टेस्ट अपन देखेंगे। देन फाइनल 7th नंबर टेस्ट रहेगा स्प्रिंग का टेस्ट। वेरी वेल नो यू हैव ए पेन विच इज थंब पेन, जो जिसमें आप नॉर्मली अगर थंब से अगर प्रेशर क्रिएट करते हो तो आगे जो निब्स जो है वो आगे इंसर्ट हो जाती है। तो उसके वजह से क्या होगा, स्प्रिंग का पुशिंग, ये जो स्प्रिंग्स जो है पुश भी हो सकती है, और व्हीकल की सॉकर्स हो गए वो भी स्प्रिंग्स में होते हैं कन्वर्ट। और सबसे लास्ट टेस्ट रहेगा आपका टॉर्जन टेस्ट। टॉर्जन टेस्ट में सिंपल रहेगा, अगर अगर सिंपल अगर चौक को जो ब्लैक बोर्ड में यूज होती है, उस चौक को अगर आप दोनों फिंगर से ट्विस्ट करोगे, मींस अगर आप ट्विस्ट करते हो तो उसका जो फेलियर होगा वो क्या होगा, टॉर्जनल फेलियर। ओके, देन सेकंड नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन आगे। ये रहेगी आपकी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक। अगर मोस्टली आपकी लाइब्रेरी में या फिर इजिली मैं वन ऑफ जो बुक्स रहेगी उसकी पीडीएफ है वो भी मैं गूगल क्लासरूम में आपको शेयर कर दूंगा। देन बियर एंड जॉनसन की बुक रहेगी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये इसका मैग्रा हिल पब्लिकेशन है। सेकंड फेमस बीसी पूनमिया, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हो। ये नाम आती है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, सेम टू सेम है, नेम चेंज है इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जगह। सेकंड एस चंद और को पब्लिकेशन कल आएगी आर के राजपूत, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इसी की टाटा मेगा हिल की आती है पब्लिशर की, जिसका नाम है एस एस रतन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बुक।
अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिसको या स्टैंडर्ड आप चाहते हो कि स्टैंडर्ड बुक्स या फिर हायर लेवल की स्टडी या फिर आपको कुछ विजुअलाइजेशन अगर ज्यादा कैप्चर करना है फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो वेरी फेमस बुक फॉरेन ऑथर की है जीएम गैरे एंड टीमोसेंको, नेम इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, सीएल इंजीनियरिंग करके पब्लिकेशन है इसका, और मोस्टली आपको इंडियन पब्लिकेशन का भी मिल जाएगा इस बुक्स का। इस बुक्स की खासियत रहेगी आपकी कि इसके अंदर जो स्ट्रेसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ एक और बुक्स है सामने, वेरी फेमस ऑथर है आरसी हिबलर। ये जो बुक्स है ये पियर्सन पब्लिकेशन है और ये भी इसी के नाम से आता है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। ओके, लास्ट जो बुक्स हैं वो अगर इजीली अवेलेबल हो जाती है तो यू कैन रेफरेंस बुक आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है उस वर्ड को देखेंगे, भाई स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है, और पर्टिकुलर मटेरियल के इस सब्जेक्ट में क्या क्या अपन ब्रीफली अगर इंट्रोड्यूस करूं मैं, कि इस सब्जेक्ट में ओनली फॉर अपन स्टडी करेंगे कि बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, कि किसी भी मटेरियल आइदर द स्टील, अगर मैं जस्ट एग्जांपल मानूं कि ये मटेरियल जो है ये स्टील है, चाहे वुडन है, चाहे आपका प्लास्टिक है, तो मोस्टली अगर इस मटेरियल पे सब्जेक्टेड टू फोर्सेस और मोमेंट, इस मटेरियल पे अगर फोर्सेस और मोमेंट जनरेट होता है तो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल मोमेंट अंडर द मटेरियल देयर आर stresses generated, or due to stress or due to external force strain means डिफॉर्मेशन भी होगा। और इसमें आगे दो मटेरियल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे, मटेरियल आइदर द रिजिड मटेरियल एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल, डिफॉर्मेबल मटेरियल या फिर रिजिड मटेरियल। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।